media. We are here to announce neutralization of a very important terrorist who had been operating for last few years in Kashmir, particularly in South Kashmir. Somewhere on 27th, we had launched an operation into the dense forest and upper reaches of Dashigam based on a human intelligence developed by JKP and Jammu and Kashmir police, along with this human asset, had led us, the Rashtriya Rifle Forces of Victor Force, to the exact site where this so-called terrorist was hiding. As you are well aware, the weather was pretty inclement and they had to close in with pure caution. The importance of neutralizing, killing of Saifullah alias Lambu is twofold. Firstly, it brings closure to Pulwama incident which happened in Feb 2019, because he was one of the mastermind for having trained a local boy, a local youth, Adil, who eventually blew himself up in an ID attack. Ever since, he had been responsible to continue to train people in making of ID and deployment of IDs against the security forces. The second very important facet of this neutralization of Saifullah alias Lambu is that he has been also responsible to recruit young locals by brainwashing them, carrying out identification, selective identification, thereafter radicalizing them and giving them weapons and putting them as face of overall strategy of our inimical agencies which are operating from across. Thus, when this young recruits were taken out, neutralized, it brought a face as if the entire movement is indigenized and a local movement, which is not so. The most heartening part is, in last few days, our mission towards ending the cycle of violence has been seen. Inimical agencies which are operating from across. Thus, when this young recruits were taken out, neutralized, it brought a face as if the entire movement is indigenized and a local movement, which is not so. The most heartening part is, in last few days, our mission towards ending the cycle of violence has been seeing some degree of progress and success. We find greater amount of information coming from the locals, from the people who, because of the improved security environment, are stepping forward to identify and bring forth closure to such notorious terrorists so that they can be eliminated. जो लंबू जो है, जिसको अदनान भी बोलते हैं, सैफुल्लाह बोलते हैं, क्या काफ़ी समय से एक्टिव रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। मैं इसका हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि जनवरी 2017 में यह सकरगा सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यह साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। अभी तक इसके खिलाफ 14 एफआईआर केस दर्ज है। सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 को हुआ था, ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है, जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। सैफुल्लाह अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है, वो 7वां टेररिस्ट है। इसके अलावा 7 टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए हैं और 5 टेररिस्ट अभी भी एब्सकॉन्ड किया हुआ है, जिसको या तो इनकाउंटर में हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे या अरेस्ट कर लेंगे। एनआईए ने चार्जशीट फाइल किया था, उसमें लंबू को भी नाम है। एज ए आईडी एक्सपर्ट ये हम लोग के लिए बहुत थ्रेट रहा है। लास्ट ईयर पुलवामा में हम लोग एक कार्ड को डिटेक्ट किए जो आईडी लेटेंट कार्ड था,
जिसको बाद में हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। उसमें फौजी भाई अब्दुल अमर और लंबू दोनों का हाथ था, दोनों आईडी एक्सपर्ट था। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है लास्ट मंथ, जिसमें हमारे एक एसपीओ फयाज को मारा और उसके वाइफ को, उसकी बेटी को 27 जनवरी को। उसमें लंबू का, मैंने उसी टाइम वहाँ से मौके से कहा था जैस का हाथ है, लंबू के इशारे पर इसको मारा गया था। इसमें मैंने एक्यूज रहा है और इसके मारे जाने से साउथ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में आईडी का जो एक ज़बरदस्त थ्रेट बना रहा है। ये आईडी को ट्रेनिंग भी देता था लड़कों को, टेररिस्ट को। ये न्यूट्रलाइज कम होगा थ्रेट, और इनके जो कुछ साथी बच गए उसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लूँगा। अटैक है 14 फरवरी 2019 को हुआ था। ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है, जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। सैफुल्ला, अदनान या छोटू जो लंबू जो है आज मारा गया है, वो 7वां टेररिस्ट है। इसके अलावा 7 टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए हैं और 5 टेररिस्ट अभी भी एब्सकॉन्ड किया हुआ है, जिसको या तो इनकाउंटर में हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे या अरेस्ट कर लेंगे। एनआईए ने चार्जशीट फाइल किया था, उसमें लंबू को भी नाम है एज ए आईडी एक्सपर्ट। ये हम लोग के लिए बहुत थ्रेट रहा है। लास्ट ईयर पुलवामा में हम लोग एक कार को डिटेक्ट किए जो आईडी लेडन कार था, जिसको बाद में हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। उसमें फौजी भाई अब्दुल अमर और लंबू दोनों का हाथ था, दोनों आईडी एक्सपर्ट था। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है लास्ट मंथ, जिसमें हमारे एक एसपीओ फयाज को मारा और उसके वाइफ को, उसकी बेटी को 27 जनवरी को। उसमें लंबू का, मैंने उसी टाइम वहाँ से मौके से कहा था जैस का हाथ है, लंबू के इशारे पर इसको मारा गया था। इसमें मैंने एक्यूज रहा है और इसके मारे जाने से साउथ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में आईडी का जो एक ज़बरदस्त थ्रेट बना रहा है। ये आईडी को ट्रेनिंग भी देता था लड़कों को, टेररिस्ट को। ये न्यूट्रलाइज कम होगा थ्रेट, और इनके जो कुछ साथी बच गए उसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मैं इस ऑपरेशन के लिए आर्मी को, पुलिस को बहुत मुबारकबाद देता हूँ।